Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, Please. sir. Good morning, beta. Please start your videos, everyone. Good morning, sir. Sir started. Very good. बाकी बच्चे भी please start your video. सर आप वो वाले क्वेश्चन समझा देंगे फिर से? Sir, can you explain those question again? Which question? Sir, the questions we were solving in the first period. We will do them later on tomorrow. This is a combined class, so we will do something else. Sir, algebra. Okay, all of you. I'm asking, do you have any doubt from your syllabus? जो आप your exams are coming. I hope you all are preparing for your exams. What doubts do you have? No. Yes, Hamad. Sir, excuse me. Sir, बोलिए. I want to ask you, sir, those question we were doing in the first class will also come. Will they come or Anything can come. Anything from anywhere can come. no, sir? आपने The question we were doing in this period. बेटा मैं कह तो रहा हूँ कोई भी चीज कहीं से भी आ सकती है. मैं ये थोड़ी बता दूंगा कि हाँ वही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में. कुछ भी आ सकता है. So questions like that. एनीथिंग कैन कम. बता तो रहा हूँ. Sir. I don't know. Sir. Okay, sir. Thank you. यस बेटा पूछो क्या डाउट्स हैं आप लोगों के. Sir. हाँ जी. Sir, can you tell what percentage of subjective and objective questions in the exam? What percentage of objective and subjective questions are there in the exam? Yes. You will have only 7 marks objective and बाकी सब आपका सब्जेक्टिव होगा. 7-8 marks के ऑब्जेक्टिव होंगे बस. 7 और 8 marks के बस. बाकी सब सब्जेक्टिव. ओके. और कुछ बेटा डाउट्स पूछो. आप लोगों को क्या किसी चैप्टर में डाउट है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई क्वेश्चन पूछना है? प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस में कोई क्वेश्चन पूछना है? आई एम वेटिंग. थिंक. जस्ट थिंक. From where do you have a doubt? Just open your book, find out your doubts. क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? Yes. Sir, chapter number 5, page number 92, question number 18. Can you tell me the question? What is the question? Read out the question. Good morning, sir. 2 power n minus 7 multiply 5 n minus 4 is equals to 120. हल्के बेटा. 2 की पावर 2 की पावर n minus 7 हाँ multiply हाँ 5 हाँ power n minus 4 5 to the power n minus 4 is equals to हाँ equals to 1250. 1250. 1250. Here we have to find the value of n. Yes, sir. Okay. देखिए
You will do the prime vectors of 1 2 5 0. 1 2 5 0 के प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। क्या होते हैं पहले 2 से डिवाइड करेंगे। सर एलसीएम एलसीएम नहीं बोलते हैं इसको, प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं। बच्चे पता नहीं प्राइम फैक्टर्स को एलसीएम क्यों बोलते हैं। बेटा ये प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है, ये एलसीएम नहीं है। तो 12 डिवाइडेड बाय 2 इज 6, फिर 2 से डिवाइड कर लो इसको, 5 2 1 0 5 ये आ गया। फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा 125, फिर से 5 से 25, फिर से 5 से 5, फिर से 5 से 1। तो प्राइम वेक्टर्स हो गए 1 2 5 0 के, हो गए। 2 की पावर n minus 7 into very easy method to find out the value of n। क्या करेंगे अब देखो, 2 यहाँ पर सिर्फ एक बार दिख रहा है आपको, 5 कितनी बार दिख रहा है, 4 बार दिख रहा है। सो 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4, 2 रेज टू द पावर 1 एंड इंटू 5 रेज टू द पावर 4। ठीक है, ये हो गए इसके फैक्टर्स। अब ऑन कंपेयरिंग वी कैन से, आपको देखो दोनों साइड में 2 दिख रहा है, दिख रहा है दोनों तरफ 2। Yes, sir. एलएचएस में आरएचएस में भी। तो कंपेयर कर लीजिए 2 की पावर्स दोनों जगह से कंपेयर कर लीजिए। n-7 यहाँ पर 2 की पावर क्या है, n-7 यहाँ पर 2 की पावर क्या है 1, तो n-7 को 1 के इक्वल लगा देंगे। ठीक है, n इक्वल टू कितना हो गया 1 + 7, यानी कि n इक्वल्स टू 8। आंसर आ गया, बस n निकल गया। अच्छा, कोई बच्चा सोच रहा होगा सर 2 की पावर आपने क्यों कंपेयर करी, 5 की क्यों नहीं करी, ये आपके दिमाग में आया? यस सर। अगर हम 5 की पावर भी कंपेयर करेंगे तो भी आंसर वही आएगा। 5 की पावर क्या है यहाँ पे, n-4, यहाँ पर क्या है 4, n-4 इक्वल टू 4, यहाँ पर 4 + 4 कितना हो गया बेटा, n इक्वल टू अगेन कितना आ गया 8, तो भी आंसर वही आया। ठीक है, यस अंडरस्टूड अभिषेक? यस सर। Yeah, any other doubt, all of you? Yes, I have one. Sir, can you please just tell like the important terms that can be used in reflection symmetry? Sorry? Sir, can you please tell the important terms, like if it comes to define what can we write the important terms in reflection symmetry? Reflectional symmetry में important terms? Yes, sir. Important terms in reflection symmetry, line of symmetry, बस एक ही term है important. Do you know what is line of symmetry? So that is like used to divide it in half. And two identical shapes. Here are the images. Yes. Yes. Sir, please tell the line in symmetry definition proper. Line of symmetry proper definition. Yes, याद sir. करोगे? याद करोगे? Sir, I will write. You will write. It is given in your book. You can note down from there. Okay, sir. Sir, Yes, sir. sir, in the exam in symmetry, sir, how will come symmetry means in shape or in question? How symmetry will come? Yes, sir. मतलब Means sir, anything can come, anything कुछ भी आ सकता है, shape. हो सकता है शेप आपको मिल जाए एग्जाम में, शेप से आपसे कह दें कि लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करो, या शेप का नाम दे देंगे, उसमें पूछ लेंगे कि हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री इट हैज, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ऐसे करके कुछ भी हो सकता है। कैसे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, जैसे आपकी बुक में दे रखे हैं उसी टाइप से कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, Yes, sir. एंड व्हाट एल्स?
Sir, we have to learn the geometrical shapes, the table that. Sorry. Sir, we have to learn the table of geometrical shapes. कि how many vertex, how many edges. नो लर्न क्या करना है, वो तो आप वैसे भी समझ के थोड़ा सा सोच के आंसर बता सकते हैं। Yes, sir. तो उसमें लर्न करने की क्या जरूरत है। सपोज इफ देयर इज अ क्यूबॉइड है कोई, तो क्यूबॉइड में यू जस्ट थिंक अबाउट अ क्यूबॉइड, इमेजिन करो क्यूबॉइड को। आसपास भी तुम्हारे बहुत सारे क्यूबॉइड रखे होंगे, एग्जाम जब दे रहे होगे तो तुम्हारे आसपास भी क्यूबॉइड की शेप तुम्हें दिख जाएगी। तुम्हारी इरेजर होगी क्यूबॉइड शेप में, बॉक्स होगा, उसमें काउंट कर लो कितने फेसेस हैं, कितनी एजेस हैं। आपको बस पता होना चाहिए फेसेस का मतलब क्या होता है, एजेस का मतलब क्या होता है, वर्टिसेस का मतलब क्या होता है। अगर आपको डेफिनेशन या फिर मीनिंग, नॉट डेफिनेशन, मेरा मतलब है मीनिंग पता है आपको सारी चीजों का, तो आप बहुत इजीली वहीं पर बैठे बैठे सोच के निकाल सकते हैं, है ना। एंड और पूछिए क्या डाउट्स हैं। बेटा वीडियोस स्टार्ट कर लो, बच्चों नाराज हो मेरे से। Sir, प्रणवी बेटा गुड मॉर्निंग, मैंने आपका फेस नहीं देखा है आज तक, कैन आई सी योर फेस। excuse me, sir. एक्सक्यूज मी, यस सर, बताइए सर। Sir, I have a doubt in exponents. यस Sir, how can हाउ कैन, we solve these types of question given on page number टेल मी द क्वेश्चन, 92? आई विल राइट डाउन, टेल मी द क्वेश्चन। Sir, 5 5 2n 5 power 2n 2n multiply by मल्टीप्लाइड बाय 5 power 3 5 to the power 3 equals 5 to the power 9. 5 to the power 9, we have to find the value of n in this, find the value of n, बहुत इजी है। आपने लॉज पढ़े हुए हैं, एक्सपोनेंट्स के लॉज, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में एक लॉ है आपका, when we are multiplying two numbers and the base is same, अगर दो numbers को multiply करें जिनका base अगर same है, for example in this case यहाँ पर first number देखिए 5 is the base, second number देखिए again 5 is the base is 5 again both the numbers। तो क्या होता है ऐसे केसेस में, लॉ कहता है कि दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है बेटा। तो 5 की पावर क्या बन जाएगी, 2n प्लस 3 बन जाएगी। Okay, sir. 2n प्लस 3 इक्वल टू 5 की पावर 9, वो ऐसी दिख रहने देंगे आप, 5 की पावर 9 ऐसी रहने दीजिए। अब देखिए LHS में 5 है बेस, RHS में भी 5 है बेस, दोनों जगह बेस अगर 5 है, सेम बेस अगर है, सेम बेस होना चाहिए, तो वी कैन राइट ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर पावर्स को कर लेंगे, इक्वल लगा देंगे, बेस को हटा देंगे, उड़ा देंगे बेस को यहाँ से, तो पावर्स को इक्वल कर दीजिए, 2n प्लस 3 इक्वल टू 9, बेस हटा दिया, ठीक है। Sir, अब इक्वेशन बन गई, यस। the plus 3 will move on RHS, so it will be minus. हाँ, so 2n equals to 6 मिल गया, n equal to 6/2, n equal to 3। सारे क्वेश्चन Yes, इसी टाइप के हैं, सब ऐसे हो जाएंगे, ठीक Sir, है। is there any method? मेथड ये है और क्या है, ये भी तो मेथड है, मेथड ही तो है, और क्या है ये, easy. Sir, लो sir, how to set that trick to solve? ट्रिक, यही तो है ट्रिक, और क्या है, और कौन सी ट्रिक होगी, ट्रिक Sir, ही तो means है we have बेटा to ये। learn the laws of exponents. अरे ऑब्वियसली बिना लॉज लर्न करे तो कोई काम ही नहीं होना है, एक्सपोनेंट चैप्टर आप बिल्कुल बेकार हो गया अगर आपको लॉज याद नहीं है, उसमें आपके बिल्कुल भी मार्क्स नहीं आएंगे, इफ यू डोंट नो द लॉ एंड यू डोंट नो हाउ टू अप्लाई द लॉ। दोनों चीजें पता होनी चाहिए कि लॉ क्या है और कैसे अप्लाई करना है, ये Okay, दोनों sir. बातें जब तक आपको नहीं पता होंगी, यू कैन नॉट डू द क्वेश्चंस।
Okay. Okay, sir. Yes. Next. सी सेक्शन वाले बच्चे कुछ नहीं पूछेंगे बेटा, सब कुछ आता है आप लोगों को। सी सेक्शन आप लोगों को सब कुछ आता है, ये मतलब मैथ्स में जो भी आपके चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर में हर चीज आती है आपको। सी सेक्शन। हाँ बेटा। Sir, हाँ बेटा। आई एम नॉट एबल टू हियर। sir, just 2 minutes, sir. हाँ yes, हाँ बेटे। सी सेक्शन स्टूडेंट्स, आपका वेट कर रहा हूँ मैं, कुछ डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो फिर मैं पूछता हूँ एक अच्छा सा क्वेश्चन, अगर आप लोग नहीं पूछ रहे हैं तो। Sir, sir, in properties of parallel lines, if question comes, so we have to figure out something on Yes, this. yes, yes. In properties of parallel lines and in the chapter lines and angles, कोई भी क्वेश्चन आएगा, you have to draw the figure. It is absolutely compulsory to draw the figure with the help of a pencil. फिगर ड्रॉ करने के बाद जब आप क्वेश्चन को And sir, सॉल्व scale. करेंगे तो हर एक क्वेश्चन में जब भी आप प्रॉपर्टी यूज करेंगे उसको सामने ब्रैकेट में मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल इफ यू आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट दैट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो आप रीजन ब्रैकेट में लिखिए। कहीं पे आपने मान लीजिए यूज करा दो दो एंगल्स इक्वल लगाए आपने एंड दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, सो प्लीज मेंशन द प्रॉपर्टी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दैट इज व्हाई दे आर इक्वल। ओके, always write the reason also। और पूछो। Sir, यस सर। sir, in the question, in the exam will come. So, sir, I want to ask, sir, यस, when we will use the co-interior property? co-interior property when we will use, मतलब you mean to ask what is co-interior property, ये पूछना चाह रहे हो? No, sir. हाँ तो I am asking on means हाँ means okay, how we will use co-interior property. how we will use co-interior property, वो तो क्वेश्चन से Yes. पता चलेगा। आप कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन या तो मेरे से पूछिए या फिर आप मेरे से ये पूछना चाह रहे हैं कि co-interior property क्या होती है, ये दो बातें हो सकती हैं।
सर आप क्या करें? हाँ बेटा बताइए। So now what we will do? सर क्या करें? अपना डाउट तो पूछो बेटा, तुम क्वेश्चन देख रहे थे, कौन सा क्वेश्चन देखा आपने? किस Sir, क्वेश्चन please you can आदिवासी? explain. Sir, you can explain. Sir, any question with sir how एनी we क्वेश्चन? will चलो check. चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, वेयर देयर विल बी को इंटीरियर प्रॉपर्टी यूज्ड, ठीक है दक्ष, यही पूछना चाह रहे हो? ओके सर। एनी वो क्या? क्वेश्चन वेयर द को इंटीरियर प्रॉपर्टी विल बी यूज्ड, एनी क्वेश्चन। ये देखिए, ये मैंने जहरा का जेड बना दिया। जहरा मैं आपका जेड बना सकता हूँ यहाँ पे। ओके सर। जहरा ने मुझे परमिशन दे दी है कि मैं उनका जेड यूज कर सकता हूँ। चलो भाई, वेरी नाइस। सर दी लाइन्स आर नॉट स्ट्रेट। अरे वाह बेटा हमाद, क्या बात कही है, अवार्ड मिलेगा तुम्हें इस बात के लिए। This question we have done yesterday. Yes, sir. So this question we have done. यस्टरडे गौरव सर ने कराया ये? सर इज एक्सप्लेनिंग दैट। अच्छा क्या बात है, देखिए मेरी गौरव सर की थिंकिंग कितनी मैच करती है, बट थोड़ा सा डिफरेंट होगा, आई होप थोड़ा सा डिफरेंट होगा। करती है। तो बेटा ये हम्माद, तुम पेंसिल से जब भी ड्रॉ करते हो फिगर कॉपीज में तो हमेशा स्ट्रेट लाइन बन जाती है? सर मैं तो स्केल से बनाता हूँ। और मैं तो बेटा रनिंग हैंड से बना रहा हूँ, मेरे पास स्केल थोड़ी है। Sir, हाँ sir, when we will the figure this, we will draw in our notebook. So the line that is curve, sir, we have to make it straight. क्या? That means that line made it is some curve. अरे बेटा वो तो मिस्टेक से बन गई है, मैं अपने हाथ से, मैं स्केल मेरे फिट थोड़ी है, मैं तो जैसे आप पेंसिल से ड्रॉ करें तो आपकी लाइंस कभी कभी टेढ़ी हो जाती है, Yes, ये sir. Yes, हमेशा sir. हाँ हाँ हाँ, तो बताओ मेरे से टेढ़ी नहीं हो सकती? Yes. क्या मैं कोई चमत्कारी बाबा हूँ? बताओ बेटा। तो मैं भी एक इंसान ही, भले ही थोड़ा गरीब हूँ लेकिन इंसानों में गिनती होगी मेरी भी। देखिए दीज लाइंस ए बी ई एफ एंड सी डी ऑल आर पैरेलल, ये सब पैरेलल दिए हुए हैं आपको, गिवन है। AB is parallel to यस EF, सर। it is, and EF is parallel to CD. Angle ABC is 70 degree, angle BCE is 20 degrees. आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल X, थोड़ा सा ट्राई करिए उसके बाद मैं बताऊंगा। Okay, sir. Okay, all of you please try the question and give your answer in the chat box. Let me enable the chat box. Yes, those who are able to find the value of X can send their answer in the chat box, and after you all have tried I will be explaining the question. Sai Sharma, your answer is not correct. Hamad Naseem, your answer is not correct. Wrong answer. हैं सर? है सर क्या होता है? What is the meaning of है सर? सर नथिंग। Dhairpal, your answer is absolutely correct. Excellent. Daksh Gangwar, excellent beta. Your answer is not correct, but excellent because you have tried. Vaibhav, your answer is correct. Outstanding. Pragya Saxena, beta, it is not correct. I think there is a small error in it.
Please find out. Now it is correct. Yes, बाकी बच्चे Please tell the answer. Abhishek not correct. ये तो आप लोग तो कह रहे हैं कल करो सर ने कराया था क्वेश्चन. Last period one corruption. Sai Sharma not correct. Sir, my was Four correct. students have given the correct answer. हाँ बेटा. Sir, Dharyapal's answer was correct. Dharyapal, your answer is absolutely correct. Very good. करें बेटा, बताऊं मैं? Yeah sir. देखिए, Yeah sir. पहले आपका फोकस ये जो Z बना हुआ है इस पे होना चाहिए. ऐसे करके Z बना है, ये एंगल आपको 70 दिया हुआ है, तो ये पूरा एंगल ये भी कितना हो जाएगा 70, बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स. ये लाइंस आपको पैरेलल दिख रहे हैं. Yes, तो ये sir. ऑल्टरनेट एंगल्स आपको मालूम है क्या होते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नाम की एक चीज होती है. सो दैट मींस Yes, दिस sir. होल एंगल इज 70. कौन सा वाला एंगल? अब मैं इसमें फिगर में मार्क, ओरिजिनल फिगर में Sir, मार्क करने जा रहा हूँ BCD. विद ग्रीन कलर. हाँ, एंगल BCD. एक्सीलेंट. ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ. देखिए एंगल BCD ये पूरा ग्रीन कलर से 70 डिग्री का हो गया. हो गया पूरा एंगल 70 का. Yes, sir. So the अब sir angle एंगल EC एंगल BCE को देखो, ये कितना है 20. पूरा 70 है, 20. जिसमें से छोटा सा पार्ट है 20 का. तो जो रिमेनिंग पार्ट है येलो कलर से मार्क करते हैं, रिमेनिंग पार्ट यानी कि एंगल ECD. ये कितना बचा मुझे बताइए? 50. 70 में से 50. 20 हटा देंगे तो कितना बचेगा? 50 डिग्री बचेगा. एम आई राइट? 50. Yes, एंगल sir. ECD आ गया 50. कैसे निकाला? 70 माइनस 20 करके. 70 माइनस 20 क्यों? पहले तो आपको रीजन देने हैं. वाई एंगल BCD 70, इसका भी रीजन देना है. क्यों है वो सब आप बताएंगे. Because alternate angle. यस, बिकॉज एंगल ABC एंड एंगल BCD आर इक्वल, दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसलिए एंगल BCD आपका 70 हो गया. एंड एंगल ECD इज इक्वल टू 70 माइनस 20, देयरफॉर इट इज 50 डिग्रीज. ये 50 आ गया. अब एंगल X आपको निकालना है. अगर आप ध्यान से Sir, देखेंगे तो आपको अब फिगर में ये दिखना चाहिए. मैं बता रहा हूँ क्या दिखना चाहिए. ऐसा ये दिख रहा है आपको? yes, ये लगा हुआ है F, ये है E, ये है C और ये है D. इतना फिगर दिख रहा है आप Yes सबको यहाँ sir. पर? It is a दिख रहा है? parallelogram. पैरेललोग्राम दिख रहा है. वाह बेटा, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं. yes. ये वाला एंगल 50 है बेटा. हमको X निकालना है. अब यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज होगी दक्ष की फेवरेट प्रॉपर्टी, को इंटीरियर एंगल्स. So, X प्लस 50, ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं. सेम साइड में है, ट्रांसवर्सल की सेम साइड में, दोनों Yes इंटीरियर sir. रीजन में. इंटीरियर रीजन मतलब पैरेलल लाइंस के बीच में फंसा हुआ रीजन. जो पैरेलल लाइंस के Yes. बीच में फंसा हुआ रीजन होता है उसको बोलते हैं इंटीरियर रीजन. So both the Okay. angles are in the interior region and on the same side of the parallel lines. ऐसे angles को हम बोलते हैं co-interior angles, and the sum of co-interior angles is equal to 180 degrees. This is the property. So x is equal to 180 minus 50. कितनी आ गई x की वैल्यू? 130 degrees. आया समझ में? Okay sir. ओके सर. बेटा तक समझ में आया कैसे यूज करते हैं co-interior angle property? Yes sir. Very nice. You are a very hard learner. Fast learner, sorry. Sir, I am Fast weak in and geometry hard but also. not in Very good. solving the sums. क्या हुआ बेटा? Sir, I am weak in geometry but not in algebraic expression.
यस, बाकी बच्चे पूछिए। Sir, give question. Sir. Sir, you are हाँ on जी mute. बेटा, मैं आपके वेट No, कर रहा sir, you हूँ, are आप on लोग क्या mute. पूछेंगे। यस, पूछिए, क्या पूछ रहे हैं। Sir, give us another question. You want me to give another question? Sir, please tell how you give these Okay. questions. Okay, let me give another question. Where again there will be co-interior property used. Another question of properties of parallel lines. ये लो बेटा। चलो, हम आज की एक शिकायत है कि मैं स्ट्रेट लाइन नहीं बनाता हूँ, so let me use a tool to draw a straight line. ये लो बेटा, हम आज खुश हो, अब स्ट्रेट बनी है, नाराज तो नहीं हो गया मेरे से। चलो भाई, ठीक है बेटा, हम आज खुश हो। AB is parallel to ED. All of you, इतना क्लियर है बच्चों। This angle is 130. This angle is 120. Find angle BCD. Find angle BCD. बहुत इजी क्वेश्चन है, शुरू हो जाइए। Okay, done all of you? Yes, sir. Send it Sir, down. I can't understand. Can't understand? Box.
Okay, let me see your answers. Um, let me think of the answer. Soumya Kapoor, your answer is absolutely correct. Excellent. Soumya Vaibhav, your answer is correct. And Lakshveer, your answer is also correct. ये तीन बच्चों का आंसर सही है. Excellent. Very nice. Thank you, sir. बाकी बच्चे बताऊं बेटा मैं हाउ टू डू. Yes, sir. ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, let's do a construction in this question because without any construction we can't do it. So क्या construction होगा, you will draw a line passing through C से पास होती हुई एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेंगे. इमेजिनरी नहीं है तो भाई रियली, बट हमने अपने पास से इमेजिन करी है, इसको अपने पास से कंस्ट्रक्ट किया है. PQ which is parallel to AB and ED. Obviously AB के पैरेलल है तो ED के भी पैरेलल हो जाएगी because AB and ED पहले से पैरेलल दिए हुए हैं. तो क्या करा है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्ट अ लाइन PQ पासिंग थ्रू C एंड पैरेलल टू AB. ठीक है बेटा, समझ गए, ये लाइन बन गई AB के और ED के पैरेलल. ये हो गया कंस्ट्रक्शन. यहाँ पर आपको खुद सोच के कंस्ट्रक्शन करना है अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो. बुक में भी ऐसा कुछ कुछ सिमिलर क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा अलग है. तो हेयर फर्स्ट वी विल फाइंड दिस एंगल, इतना पार्ट पहले निकालेंगे.